traveling from esophagus, food goes into cardia, fundus, body, greater curvature, lesser curvature, pylorus, or small intestine. Very good. Diagram is also good. Okay. So let's go to the Vivan's homework. Daksh's homework. Okay. Liver, pancreas, small and large intestine, they are located around the same. Not a small and large intestine, Daksh. You need to write only liver, pancreas, and gallbladder. These are the three organs present around the stomach. Okay. चल चीनू. Sphincter is a rubber band like substance present in the start of small intestine and stomach. Okay, so the definition of sphincter is very correct, but I have asked you which are the two sphincters present. So you need to write which are the two sphincters, cardiac sphincters and pyloric sphincter. What was the third question? I doesn't understand it. Okay, what are the parts of stomach? Parts of stomach, I have told you, right? You were the one who used to tell me part of the stomach in the lecture. आप ही बता रहे थे ना सारे पार्ट्स स्टमक के. कैसे भूल गए आप? These are the parts: cardiac, fundus, body, greater curvature, lesser curvature, pylorus. Okay? Okay. Yes. Take the screenshot if you don't remember it. The diagram से आपको याद रहेगा. Then next question was, what are the make a diagram. Okay, you have made a diagram and it's good. Then fifth question was water absorption occurs in large intestine. Okay. Okay, Vivan, I have told you that make a diagram with a pencil. Yes. और आपने बनाई नहीं बाद में. मैंने बनाई है मैम. फोटो नहीं सेंड किया. फोटो सेंड नहीं किया क्या? ओके. Sphincter is a rubber band like structure present in the body. Which are the two sphincters? आपने भी नहीं लिखा. Write it down. Which are the two sphincters? Food goes to cardia, then fundus. Okay. विवन ने बहुत करेक्ट आंसर राइट किया है थर्ड क्वेश्चन का. आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम esophagus, food goes into cardia, then fundus, then body, greater curvature, lesser curvature, and then small intestine. Very good. Fourth was a diagram, and fifth question was small intestine absorbs the maximum water. Large intestine absorbs the maximum water, बच्चा. Not a small intestine, okay? Yes. Okay. So we'll start with the small intestine, and today we are going to learn bones, skeleton system. Okay. So how many bones are present in our body? 206. Okay. So we are going to learn names of 206 bones today. Okay. Okay. Yes. Yes. Let's start with the small intestine. Within 20 minutes, we need to finish small intestine. Then we'll go to the bones. Okay. और स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होने के बाद आप तीनों में से कोई एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी अभी तक पढ़ाया है वो कुछ जो पूरा है वो 5 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है. मैं किसी को भी बोलूंगी तो यू नीड टू रिवाइज. थोड़े पेजेस टर्न कर लो और देख लो कि कौन सा क्या क्या पढ़ाया है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक, दिस इज स्टमक. सबको इमेज दिख रही है? Yes.
Yes. मार्किंग्स दिख रही है? Yes. Okay, so this is a J shaped stomach. Okay, J shaped stomach, and J shaped stomach goes to the small intestine. Okay, अभी ये है ऊपर वाली लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके पीछे से स्टमक का रास्ता जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये अंदर. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स होते हैं पहले वो देखते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शंस: duodenum, jejunum and ileum. Okay, so what is duodenum? This is the duodenum. Duodenum connects stomach to the small intestine. This is duodenum. Yes. डियो मतलब क्या होता है? दो. सो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? डिओडेनम. ओके, दिस इज डिओडेनम. देन jejunum and ileum. What is jejunum? Jejunum means the inner part of the small intestine. And what is ileum? Ileum is the end part. Okay, end part of the small intestine. Which are the 3 parts of small intestine? Duodenum. Dio means दो. So stomach और small intestine को जो connect करेगा, that is duodenum. Then jejunum. Jejunum is the inner part, and ileum. Ileum is the end part. Okay. Okay. Yes. Yes. So these 3 segmental parts work together to further break down and absorb nutrients from the food we eat. Here we have mentioned some of the characteristic feature of all 3 different parts of the small intestine. Okay. Duodenum, first part. Duodenum is the first part of the small intestine, and it is relatively short, about 10 inches. Just a second. स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, पहले वो बताओ मुझे. वो विड्थ में छोटी होती है इसलिए. लेंथ में छोटी होती है, विड्थ में छोटी होती है, किस चीज में छोटी होती है? विड्थ में. विड्थ में छोटी होती है. लेंथ में वो कितनी बड़ी होती है? 7 मीटर. दोनों बड़ा. कितनी बड़ी होती है? What is your height, Daksh? What is your height? 5.1. What is your height, Disha? Okay, what is your height, Vivan? 4.5. Okay, so I'll tell you how big is your small intestine. The small intestine is a vital part of digestive system where most nutrient absorption occurs. Most of the water absorbed in large intestine. Vivan? Vivan? Most of the water is absorbed in large intestine, and most of the nutrients are absorbed in small intestine. There is approximately 20 feet, that is 6 meter in length in adults. So you are 5 feet, 4 feet, and your intestine is 20 feet. So imagine how much coiling is inside it. Okay? What is the length of small intestine? 20 feet. Or 6 meters. Sometimes they will ask you how much long is small intestine. They'll give you options in meters: 2 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, or 20 meter. So you need to write it is 6 meters long. That means 20 feet long. Imagine what is 20 feet. You are just 4 and 5 feet. That tall.
and the 20 feet coiling has been done in our small intestine. So why so much coiling is there? Tell me, why so much coiling is there? Why? Because it have less space. ओके, कॉइलिंग किस लिए की, ये तो समझ गया कि स्पेस रिड्यूस करनी थी, पर मैं इतनी बड़ी लेंथ देने की क्या जरूरत थी? दे देते ना 2-3 फीट की लेंथ और सीधा सीधा इतना बड़ा ये कियोस करने की क्या जरूरत थी? 20 फीट। बिकॉज फिर फूड है ना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता. यस, फूड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा था, और एज वेल एज जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का काम है, तो मैं बताऊंगी आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ होल्स रहते हैं. तो जितनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन उतने ज्यादा होल्स मतलब उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन. सो दैट्स व्हाई the small intestine is very long in the nature, because most of the nutrient absorption occurs in the small intestine, and the length of small intestine is 20 feet or 6 meters. Okay, the segment play crucial. Okay, that is not important. Duodenum. Let's start with the duodenum. What is duodenum? Duodenum connects stomach and small intestine. So first part of the small intestine is duodenum. Duodenum छोटा होता है, बहुत छोटा होता है. I'll show you duodenum. Your duodenum is here. This is your duodenum. मतलब जहाँ पे स्टमक थोड़ा सा एंड होता है एंड थोड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इतनी सा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं duodenum. Understood? आता नको बोलू असं, यस. नाही तर मग तुझे काम असते हे काय ते काय. Yes. यस. जायच्या और आधी उसकी लेंथ हे होती कर है ते 10 कर. इंचेस. आई बस राहिलंय 10 इंच उसकी लेंथ होती है. अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है 20 फीट का, और डिओडेनम की लेंथ है बस 10 इंचेस. The duodenum receives digested food from the stomach and mixes it with the digestive juices from the pancreas and liver. These juices contain enzymes that further break down food for absorption. Okay. So प्लंबर this होता is त्याला your म्हटलं duodenum. हे Okay. करायचंय This is your ते duodenum. वॉशिंग स्टमक से मशीन ते duodenum आपलं आया. ड्रेन साठी काढायचं म्हटलं हा आ ठीक गई आहे हमारी करून देतो. डायग्राम डाइजेस्टिव हा सिस्टम म्हटलं की. चालू चालू इलेक्ट्रिकल वाल्याला लावलं त्यांनी काय उचललं नाही. तो म्हटलं 5:30 वगैरेला येणार आहे. सो ओके, तो नाही ये है डिओडेनम. आणि मग किचनच्या आतमध्ये फरची लागली, मग आता काय माहिती कसं काय काढत. ये हुआ डिओडेनम आपका, हा तेच हॉलचे राइट? गॅलरीचे स्विच बोर्ड आहे ते घेऊन काढायला वाटतं. जहाँ पे स्टमक एंड हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन हा शुरू हुई, तो तो भी दिस लगेच पार्ट म्हणत इज होता नहीं डिओडेनम का सबसे अच्छा पार्ट. ही तो किचन डिओडेनम दिख में रहा क्या है, होता क्या है? माहिती का मुद्दा म्हणा. लीवर से जूसेस आते हैं. एक वायर डाली, लीवर से जूस आया. एक दूसरी वायर डाली, जहां से पैंक्रियास का जूस आया. तीसरी वायर डाली, जहां से गॉल ब्लैडर का जूस आया. अब ये 3 डिफरेंट डिफरेंट वायर है क्या? नहीं. तो ये वायरिंग कैसी है? आई विल शो यू. ओके. तो ये ऊपर है लीवर आपका. लीवर से एक वायर आई, मतलब एक वेन आई. वायर इज द वेन, जो बॉडी में दिखते हैं ना हमारे वेन्स, जहां पे आपको सलाइन डालते हैं, दैट इज वेन. तो एक वेन इधर से आई, फिर नीचे दिखा उनको गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर की एक वेन ली उन्होंने. फिर इधर दिखा उनको नीचे पैंक्रियास, तो पैंक्रियास की एक वेन ली. ये तीनों वेन्स को मिक्स किया उन्होंने. ओके. पाइपलाइन कैसी होती है? इधर से एक पाइप आता है, उधर से एक पाइप आता है, इधर से एक पाइप आता है, फिर उसको एक नॉब लगता है, राइट? फिर वो नॉब को एक मेन पाइप लगता है. सेम लाइक दैट, लीवर से एक पाइप आया, पैंक्रियास से एक पाइप आया, गॉल ब्लैडर से एक पाइप आया, और उन तीनों को मिला के एक कंटिन्यूअस पाइप, इधर एक उन्होंने नॉब बिठाया और उन तीनों को मिला के एक कंटिन्यूअस पाइप उन्होंने बनाया, और वो सीधा पाइप छोड़ा डिओडेनम में. समझे आप लोग? यस. Yes. So all the juices of liver, pancreas, and gallbladder are mixed in duodenum. Okay. And what is duodenum? The starting
The ending of stomach and the starting of small intestine. Yes, Duodenum connects stomach and small intestine. yes, yes. Very good, very good. हम्म और फिर सारे जूसेस उधर मिक्स हो जाते हैं एंड एंजाइम्स व्हाट इज एंजाइम्स नहीं आता एंजाइम्स क्या होता है काय ते कि कोण सारे जूसेस तो अपने आप मिक्स हो रहे हैं सो आपने झगड़ा देखा है झगड़ा जब चार दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं राइट एंड दो लोग जब झगड़ा करते हैं तब वो झगड़ा ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट होने को आ जाता है कि हाँ दे थिंक कि हाँ हो गया सॉरी इसने बोला सॉरी एंड द फाइट हैज बीन स्टॉप पर एक इंसान बीच में से आता है उसको लग रहा होता है कि इन दोनों का झगड़ा अभी खत्म होने वाला है सो दैट पर्सन इज लाइक स्पाइस अप द थिंग्स वो बोलता है अरे असं कसं काय बोलू शकतो तू तुला फिर वो उसको बोलता है इसने भी तुझे गलत बोला है सो जो थर्ड पर्सन होता है वो खत्म होने वाला जो झगड़ा होता है उसको स्पाइस अप करता है खत्म होने वाला जो झगड़ा होता है लावायची उसको शेपटीची पेट्रोल शेवटी की तरह काम करता है जो आग बुझ गई होती है उसको पेट्रोल डाल के और बड़ा देवीच्या वादीला थोडस फायर कर देता है सो द व्हाट इज द एंजाइम्स एंजाइम्स इज कि पैंक्रियाज लीवर एंड गॉल ब्लैडर इन तीनों के जूसेस मिला के फूड का ब्रेकडाउन हो रहा होता है पर एक पॉइंट के बाद उसकी एसिडिटी लगेच खिडक्यांचे एसिडिटी आणि उसकी सेंट गोबेन कम विंडोज होने लगती है तो वी एड एंजाइम इन इट आवर बॉडी एड्स एंजाइम्स इन इट टू increase the acidity of those juices. Understood? What is ऑर्गेनिक enzymes? फॅटी Enzymes increase the acidity of the juices. Okay. Yes. मानवीची घास Do you know पाणी what is टाकायचं pH? What is acid? What is base? No. No. Okay. So that is the part of chemistry, but I'll explain you in short. So काय this is तू खाऊन घे ना एक पूर्ण ना Acid means I know. uh, Acid means I know. what is acid? The mixtures of many chemicals. Okay. And what is basis? No. Okay, I'll explain you. Imagine this is the line. Okay, ये लाइन है उसमें ये है एसिड वाला सेक्शन पहले तो I'll explain you what is acid, what is base and what is neutral. एसिड मतलब क्या होता है किसी ने ये देखा है क्या बोलते हैं फिनाइल नहीं बोल सकते वो होता है ना फ्लोर क्लीनर जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो जाता है Yes. अलगी होता है तो हम उसे डालते हैं फ्लोर क्लीनर को और वो ऐसे जलने लग जाती है वो अलगी और तुरंत वो ब्लैकिश रीजन निकल जाता है बाथरूम में भी जहाँ पे ब्लैक ब्लैक होता है तो हम एसिड डालते हैं देखा है Yes. किसी ने हाँ देखा है. तो वो जलने लग जाता है तो एसिड आर द केमिकल जो जलन प्रोवाइड करते हैं जिससे सरफेस जलने लगता है और एसिड ना एसिड को हम टच नहीं कर सकते अगर एसिड को टच किया तो बॉडी जलने लगती है आपने न्यूज में भी सुना होगा कि एसिड अटैक्स होते हैं विक्टिम्स पे और पूरा फेस जल जाता है तो एसिड्स आर वेरी डेंजरस आप काय उसे बेयर हैंड से टच नहीं कर सकते नहीं एसिड इज इन्हें द खाई केमिकल ओके हाँ एसिड इज द बरोबर केमिकल जिसको हम बेयर समोसा हैंडली कचोरी टच नहीं कर सकते ओके एंड व्हाट इज बेस बेस इज आल्सो अ सब्सटेंस जो बेयर हैंडली टच कर सकते हैं और जो एसिड में मिक्स करने के बाद वो एसिड की एसिडिटी को कम करता है दैट इज बेस ओके एसिड इज वेरी डेंजरस कोई उसे टच नहीं कर सकता बेयर हैंड से तो अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है कौन सा सब्सटेंस बेसिक है तो उसके लिए ना एक पीएच नाम की चीज डेवलप की है हम्म पीएच तो
ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत डिटेलिंग में पढ़ोगे, बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस। एसिड को हम बेयर हैंडेडली टच नहीं कर सकते, उससे सारी चीजें जलने लगती है। कपड़े पे गिरेगा कपड़ा जल जाएगा, हाथ पे गिरेगा हाथ जल जाएगा। लेजिट क्या होता है कि पानी निकलने लगता है स्किन का, इतने डेंजरस होते हैं वो सब्सटेंस। और इसीलिए जो लोग होते हैं एसिड अटैक्स करने के लिए विमेन पे, वो यूज करते हैं दैट एसिड, ओके, जिससे पूरा स्किन खराब हो जाता है। और प्लास्टिक सर्जरी से भी वो स्किन रिपेयर नहीं होता है। सो whenever someone says this is acid, you need to think, you need to be careful about it, that is it is very dangerous, I can't touch this thing. So उसमें क्या होता है, एसिड में एक ना एक स्केल बनाया है। तो स्केल क्या होता है, हर बार हम टच नहीं कर सकते किसी लिक्विड को कि ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है या ये बेस है। तो हमने एक स्केल बनाई है, साइंटिस्ट लोगों ने स्केल बनाई। स्केल में क्या होता है कि एक उसको बोलते हैं pH स्केल। राइट इट डाउन इफ यू नीड टू रिमेम्बर। एक pH स्केल होता है। pH स्केल में क्या होता है, द सब्सटेंस जिनका pH, वो स्केल डालते हैं लिक्विड में। अभी लिक्विड को डायरेक्ट टच तो नहीं कर सकते, तो वो स्केल और वो पेपर, लिटमस पेपर, वो एसिड में डालते हैं। एसिड में डालने के बाद अगर उसका pH 7 से कम हुआ, इट इज 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो अगर उसका pH ऐसे जाते ही वो डाला, स्केल अंदर डाला, तो उसके ऊपर का बार ऐसे शिफ्ट होने लगता है। पहले वो बाहर रहता है तो 7 पे रहता है, लिक्विड में डालते ही वो एक तो 7 के इस साइड शिफ्ट होगा, नहीं तो इस साइड शिफ्ट होगा। अगर वो 7 के लेफ्ट साइड में, मतलब 1 2 3 के साइड में शिफ्ट होने लगा उसका pH, तो दैट सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर वो 7 8 9 10 इस साइड शिफ्ट होने लग गया, दैट इज बेस, ओके। और अगर 7 पे रहेगा तो 7 पे रहा तो दैट इज न्यूट्रल, दैट सब्सटेंस इज नॉट एसिडिक नाइदर बेसिक, इट इज न्यूट्रल। उसमें एसिड डाला तो वो बन जाएगा एसिड, अगर उसमें बेस डाला तो वो बन जाएगा बेसिक, ओके। ओके। मोस्टली एसिड की क्वालिटी क्या होती है, एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट, एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते, बर्निंग पावर। तो एसिड क्या क्या, हमारे घर में बहुत सारे एसिड्स होते हैं। लेमन जूस इज ऑल्सो एसिडिक, नॉट दैट एसिडिक। अब एसिडिटी की लेवल कैसे डिसाइड होती है, अगर एसिड का pH रहा 6, ये है एसिडिक पर इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल एसिड, ओके। अगर उसका pH रहा 5, इट इज नॉर्मल एसिड, उसको हम टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, ओके, दैट इज एसिड। बट वो है एसिडिक क्योंकि उसका pH 7 से कम है, ओके। लेमन जूस इज ऑल्सो एसिड, बट सॉल्ट इज बेसिक, सॉल्ट इज बेस, उसका pH 7 से बहुत ज्यादा होता है, 10 11 9 ऐसे उसका pH होता है। तो जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, एसिड भी डालते हैं बेस भी डालते हैं, टू मेक इट न्यूट्रल। क्या करने के लिए, टू मेक इट न्यूट्रल। यस, मतलब एसिड डाला, यस एसिड डाला, थोड़ा बेस डाला, एसिड भी है उसमें बेस भी है, दोनों का pH, अभी इसका pH है 10 और इमेजिन लेमन जूस का pH है 3, तो 10 - 3 उसका pH कितना हुआ, 7, ओके। तो वो हो गया बेस। यस। जब भी हमें एसिडिटी होती है हम क्या खाते हैं, बेस खाते हैं, सोडा खाते हैं, सोडा इज प्रॉपर बेस। सो
सॉरी 7 इज न्यूट्रल, तो वो हो गया न्यूट्रल। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है वी ईट न्यूट्रल स्टफ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस? फर्स्ट टेल मी Yes. दैट। Yes. Okay. Vivan, explain me what is acid, what is the pH of acid, what is base, what is quality of base. Acid, as pH of acid is below 7, means 1, 2, 3, 4, 5, 6, and acid is a substance. Acid is a liquid which can burn something, and it has a strong smell, it has a strong taste, and it has a strong burning power. And basics is a Base. base is a base. pH of base is uh, after 7, means like 8 to infinity. Okay. 8 to uh, infinity, yes, we can say that. and it 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 is opposite to the acid, and it cannot burn that. It can reduce acidity, okay? Yes. Daksh, explain me what is enzymes. Enzymes. Does anyone know what is enzyme? लीवर का जूस, पैनक्रियास का जूस और ब्लैडर का जूस मिलके एंजाइम्स में जाता है। नहीं, ये तीनों चीजों का जूस एक साथ होता है जो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, पर उसकी एसिडिटी बढ़ाने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करके। ओके, Yes. यही से तो हमारी कहानी शुरू हुई थी व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं? उन जूसेस की एसिडिटी बढ़ाते हैं। ओके ओके एवरीवन, Okay. डू यू नीड अ ब्रेक? No. ओके, देन नेक्स्ट इज द जेजुनम। जेजुनम क्या करता है? जेजुनम का कुछ काम नहीं होता है, बेसिक काम होता है जेजुनम का, मैं आपको बताती हूँ। जेजुनम में मीड वाला जो वायरिंग होता है, सारा जेजुनम होता है, राइट? मीड वाला वायरिंग। विमान, यू स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, What? स्टैंड अप। दूध Okay, के sit down. नको. हे मम्मी कातर फेक गं वरतून. Adjust your camera. Good. कातर. So there are some things. तुला काय What ऐकू is jejunum? Jejunum is the middle coiling of small intestine. वहां पे क्या होते हैं? बीच में ऐसे लाइनिंग्स होते हैं, बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जेजुनम के बीच में ऐसे कॉइलिंग होती है। तो जेजुनम के बीच में जो ऐसे वायरिंग होती है वो, और होल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम। द लास्ट पार्ट इज इलियम। इलियम से क्या होता है? इलियम सीधा कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन को। डिओडेनम कनेक्ट होता है स्टमक को, इलियम कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन को, मिडिल वाला पोर्शन होता है जेजुनम। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? Can you repeat the question? ओके, तो सबको समझ रहा है? मैं वही पूछ रही हूँ कि सबको समझ रहा है व्हाट इज 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम।
Yes. ओके सो टर्न योर पेजेस. अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हुआ है, जो सबसे फास्ट बताएगा, मैं टाइम लगाऊंगी, जो सबसे फास्ट बताएगा दैट विल बी द विनर. तो फास्ट देखो क्या क्या हुआ है अब तक का. आई हैव द स्लाइड्स, मेरे पास सीक्वेंस है. अगर किसी का सीक्वेंस गलत हुआ तो वो हार जाएगा. ओके यू हैव 2 minutes. हो गया देख के. Yes. ओके लेट्स स्टार्ट विथ दक्ष. मैं टाइम लगा रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. एक्सप्लेन. पहले when we take a bite, can I speak in Marathi यस यस. or Hindi? अ, जब हम when जब हम बाइट लेते हैं तब वो सलाइवा के साथ मिक्स होके मॉइस्ट लम्प बन जाता है. फिर वो इसोफेगस से स्टमक में जाता है. फिर गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, इन सब से जूसेस आते हैं. वो और हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. फिर फूड जाता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर वो उधर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है. फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. फिर वो किडनी में जाता है. किडनी वो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करती है और वो एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है. ओके और क्या क्या पढ़ाया था मैंने. टीथ्स पढ़ाए थे, माउथ पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ यस. पढ़ा था. गो गो गो. Oh, the formula of mouth is 2 1 2 3. And the white proportion portion of on our teeth that is called as known as enamel, and our tongue is the tongue is attached to our jaw is called frenulum. Our teeth are packed with oral cavity. That type of dentition called as trichodont. Okay, 3 minutes are over. Okay. Okay, Vivan, go. Trachea is the windpipe. Esophagus is the food pipe. Parts of teeth. Incisors, 2 in each jaw. Canines, 1 in each jaw. Premolars, 2 in each jaw. And molars, 2 Vivan, I in don't each want jaw. you to read everything. ICPM teeth formula mouth formula is ICPMM 2123. Our tongue is attached to our mouth, and the substance which attach it is called frenulum. Okay, take a bite. Take a bite inside mouth. When we take a bite inside the mouth, it mixes with the saliva. It goes from esophagus. It first takes the juices from the liver, and then goes into the stomach. Then after the stomach, it goes into the
cardia, then cardia, then uh, greater curvature, smaller curvature, and Cardia, then fundus. fundus, greater curvature, smaller curvature, and then small intestine, and after that the anus pushes out the waste from the body. Disha, you. इसोफेगस फूड पाइप, फिर हमने वायरस, बैक्टीरिया पढ़ा, डेंगू का मॉस्किटो एडिस एजिप्टी फीमेल होती है, मलेरिया के मॉस्किटो एनाफोलिस मॉस्किटो वो भी फीमेल होती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट और I had got a mail in Chinese expert who translated and I sent my image. Ki, this is me. Please approve my page and I have to work on it. I'm the best friend to get my account back. So panicking that time. बाद में मैंने मेरा ही डिफिन फिर हमने esophagus have absorbed cardiac काय चाटायचं और If you invest in Series A, you see the product is ready at the time, right? We have some. This is why. Okay. So, those who have used their notebooks to answer the questions, so please don't use it. This is not time pass or something like that. Daksh, when is your Homi Baba exam? In November. November. This coming November, right? Yes. Okay. So they have given any portion or syllabus, something like that? No, they have given a book. Okay. So you will just send me the photos of index. Okay. Yes. Okay. Later on, after this lecture, you send me the photo of index, so everyone will cover some part of that book. Okay. That will be helpful for your exam. Yes. Okay. Vivan, have you filled the form of Olympiad? I am not giving the Olympiad exam. I am giving the SSC scholarship exam. Okay. Scholarship exam. Okay. So that portion is totally different. That will be related. Maths and physics will be. If there is an Olympiad exam, I will like to fill the form. Okay, so the exam is in October. Daksh is giving the exam. Daksh is giving the exam of Homi Baba. No, that is in November. Yeah, it is in November. So it is like that. So you guys need to fill the form in trial basis. Okay. Okay, we'll start with the Daksh. Don't forget to send me the photos, and as well as we'll cover the portion for Vivan also. So that will be helpful for you also, Vivan. Okay. Okay. What? No, for the next round, we're gonna have Carrington. Okay, so how many bones do you know? Names of the bone. I don't want the answer. 206. Names of There are 4 types of bones in our body. First, flat bone. Second, small bone. Third, irregular bone. And fourth, long bone. Okay, very good.
Okay. The longest So- bone, the longest bone in our body is the femur, which is present in the thigh. Very good, very good. And it is the shortest bone. Stirrup. It is present. There are 3 bones in each of the ear. Of these, the Sternum. stirrup is the smallest bone in our body. Sternum It is is present in our shoulder. No. Smallest bone is not in our shoulder. Smallest bone is in our ear. And I think name में थोड़ी गड़बड़ हो रही है. Which are the 3 bones? Do you know the names? no, Malleus, incus, steps. कुछ सुना है? no. No. Okay. So there are 3 bones in our ear: malleus, incus, and steps. Okay. Say malleus, Malleus, incus, incus, and steps. and steps. Steps is the smallest bone in our ear. Yes. Okay. So we'll start with the bones of our head. I'll just show you how to remember it. बोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया उन्होंने. Just a second. So we have 206 bones. Okay. Okay. Yes. उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले 80 बोन्स को. ओके. 80 बोन्स होते हैं अपर बॉडी में. अपर बॉडी कहाँ से? ओके. Who will remind me to bring the skeleton in next lecture? You need to call me or message me to bring the original skeleton. Okay. Yes. I'll show you every bone. I have the skeleton of human skeleton. That was a dead body. We have removed all the bones from that dead body. And I'll show you the each and every bone, okay? But you just need to remind me that I have to bring that bones. Okay? So कमर से ऊपर, लंबर रीजन से ऊपर, in excluding your hands, excluding your legs, we have 80 bones. Okay? Vivan, stand up. I'll show you in Vivan's body. Yes. So, okay. So, lumbar region. Where is your lumbar region? This. इससे ऊपर वाला जो रीजन है, चेस्ट, ओके, एब्डोमेन, नेक एंड होल फेस, इसमें 80 बोन्स है. ओके. एंड लेग्स एंड योर हैंड्स, उन दोनों के मिलके 126 बोन्स है. ओके.
उन दोनों के मिलके कितने बोन्स है? 126 बोन्स. ओके विवान, यू कैन सिट. नंबर वाला है इसमें. राइट इट डाउन. ओके, ओपन योर नोटबुक्स. काला काय काय I want all of you to answer in the next lecture संपली होती all ना? the 206 bones by your heart. Okay, no one will open their notebook just like this. जो आपने आज किया, this won't happen in next lecture. Okay, write it down. We have 206 bones. उसमें से 80 bones are present in axial part. Axial is कमर से ऊपर वाला part. सोफे पण आहे. हो गया? Can you spell axial? What? Can you repeat the statement? Okay, we have 206 bones. 80 bones are present in axial part. Axial, A-X-I-A-L, axial part. In Okay, just a second. So we have total 206 bones. This is our human. Okay, he is very handsome. Okay, so इधर से ऊपर वाला जो भी पार्ट है, एक्सक्लूडिंग हैंड्स, ओके, फेस, उसकी चेस्ट हो गई, उसका एब्डोमेन हो गया और उसका नेक हो गया. इन तीनों में एक्सियल पार्ट, एक्सियल मतलब ऊपर वाला, सो एक्सियल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 80 bones. How many bones? 80 bones. 80. ओके. एंड अपेंडेजेस मतलब क्या होता है? फांद्या, झाडांना ज्या ब्रांचेस असतात, और जो क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिम्स को. सो हैंड्स और लेग्स अपेंडेजेस के मिला के होते हैं अपेंडिकुलर पार्ट. 126 हो गए टोटल. 206 हो गए. Yes. उसमें से अब एक्सियल का देखते हैं. ओके, एक्सियल मतलब बस ऊपर वाला पार्ट. एक्सियल में क्या क्या आता है? स्कल आता है. ओके, एक्सियल में क्या क्या आता है? स्कल आता है, फिर ईयर आते हैं, राइट? एक्सियल में नेक आता है. बैकबोन नहीं आता एक्सियल में. होता है बताती. तो स्कल आता है, ईयर होता है, नेक होता है. पहले ये हो गया ऊपर वाला सेक्शन. ओके, मम्मी पानी दे ना. देन आता है तुम्हारा चेस्ट वाला रीजन. चेस्ट वाले रीजन में आता है बीच वाला स्टर्नम और रिब्स. चेस्ट वाले रीजन में हो गया तुम्हारा ये बीच का, जो तुम्हें बोन फील हो रहा है ना हार्ट के, ये जो बीच वाला बोन होता है दैट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. दिस इज द, जैसे सामने से कुछ आ रहा है, अगर आपको कुछ लगता है कोई मार रहा है, तो सीधा वो हार्ट को ना लग के वो स्टर्नम बोन को लगता है, और एंड दैट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट.
सो दिस इज बीच वाला स्टर्नम बोन. देन यू हैव रिब्स. ओके, एक्सियल में हो गया स्कल, नेक, ईयर्स, चेस्ट, रिब्स. ये बीच वाला स्टर्नम, ये रिब्स. फिर आता है तुम्हारा बैक वाला रीजन, वर्टेब्रा, वर्टेब्रल कॉलम. ओके, वर्टेब्रल कॉलम का नीचे वाला कमर वाला जो एक बोन जो आपको फील होगा, कॉक्लिक्स बोलते हैं उसे, जो एकदम ऐसे शार्प बोन होता है, जो बैठने पे भी कभी कभी किसी का पेन करता है, जो फील होता है, दैट इज द बोन. सो एक्सियल में क्या क्या हो गया? स्कल, ईयर, नेक, चेस्ट, रिब्स. चेस्ट का स्टर्नम, रिब्स. बैक का वर्टेब्रा, सैक्रम एंड कॉक्लिक्स. ओके, Yes. समझ रहा है? Yes. Yes. अभी उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. स्कल के कितने बोन्स होते हैं? राइट इट डाउन. स्कल के कितने बोन होंगे? 22. कितने बोन्स होंगे स्कल के? 20. 22. फिर स्कल को जोड़ने वाले कुछ बोन्स होंगे, मतलब ईयर, हायर. सो ईयर के कितने बोन्स हो गए? 6 बोन्स. 3 तो मैंने आपको बताया एक ईयर में होते हैं. 3 मैलस, इंकस, स्टेप्स. एक ईयर में 3, दूसरे ईयर में 3. ईयर के हो गए 6 बोन्स. आप लोग ही काउंट करोगे ना, टोटल 206 बोन्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप बताओगे मुझे. पहले हो गए स्कल के 22 बोन्स, उसमें ईयर के हो गए 6 बोन्स. अभी नेक रीजन है आपका. ओके, ये नेक रीजन है. नेक रीजन में जब भी कोई स्ट्रैंगुलेशन, पता है आपको स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या होता है? हैंगिंग टू डेथ, फाशी. फाशी. हाँ, तो फाशी जेव्हा आपण देतो, जेव्हा सरकार फाशी देतं, गव्हर्नमेंट फाशी देतो, तेव्हा काय होतं? इथे एक हे बांधलं जातं, रोप बांधलं जातं. इथे रोप बांधल्यानंतर तो माणूस कसं काय डेथ होतो, त्याची डेथ कशी होते? तर इथे आपलं एक हायोइड बोन असतं, हायोइड बोन. ओके, हायोइड बोनला जेव्हा आपण रस्सी बांधतो आणि वरून स्ट्रँग्युलेशन देतो जोरात, तेव्हा त्या हायोइड बोन मध्ये ती रस्सी अटकते आणि ती रस्सी त्या बोनला वरती खेचते. वरती खेचल्यामुळे काय होतं? दॅट बोन इज कनेक्टेड टू ब्रेन. सगळा वर्टेब्रल कॉलम, तुमचा स्पाइन सगळा दाबला जातो, कारण तो बोन डायरेक्ट वरती खेचला जातो. आणि तुमचा जो इथला एरिया असतो हा पण पूर्ण दाबला जातो, म्हणजे तुमचा एअरवे पूर्ण जाम झाला. त्यानंतर तुमचं नर्वस सिस्टीम पूर्ण ब्लॉक झाली. सो दिस हायोइड बोन, हायोइड इज रिलेटेड टू हँगिंग. सो हायोइड बोन इज युज्ड इन स्ट्रँग्युलेशन. एक्झॅक्टली हायोइड बोनच्या इथे ती रस्सी बांधली जाते आणि जेव्हा स्ट्रँग्युलेशन दिलं जातं, when they give you strangulation, not you, when they give strangulation to the victim or criminal, तर तेव्हा तो बोन डायरेक्ट असा अटकतो रस्सीत. ओके, आणि पर्सनची डेथ होते. अंडरस्टूड? Yes. Yes. So this is the hyoid bone. Hyoid bone is present in the neck. इथून फील होते तो आतमधून. मी जेव्हा तुम्हाला वर्टेब्रल हे आणून दाखवेल ना, काय बोलतात त्याला, स्केलेटन. येस, स्केलेटन आणून दाखवेल ह्युमन बॉडीचं, तेव्हा तुम्हाला मी हायोइड बोन दाखवेल कसं दिसतं. ओके, किती झाले? 22, 6, 20. किती झाले? 26. काय? 26 कसं काय होतं? 28. 28. 28. ओके, स्कलचे किती घेतले तुम्ही? 22. 22. स्कलचे 22 झाले, इयरचे 6 झाले. Oh. Yes.
28 आणि हायर बोन 29. Yes. Okay, then middle wala portion is sternum. Your sternum protects heart. Okay, चेस्ट सुरू होण्याच्या आधी आणि नेक संपल्यानंतर, चेस्ट सुरू होण्याच्या आधी आणि नेक संपल्यानंतर जे बोन लागतं दॅट इज स्टर्नम, विच प्रोटेक्ट्स युअर हार्ट. ओके ओके, सो दिस इज Yes. वन बोन, दिस इज वन बोन. 22 plus 6, 28 plus 1, 29, 1, 30 बोन्स झाले. Yes. फेस मध्ये आणि तुमच्या स्कल मध्येच 22 बोन्स आहेत. त्याच्यानंतर इथे नेक मध्ये 1 बोन, इयर्स मध्ये 6 बोन्स, चेस्ट मध्ये 1 बोन. आता आले तुमच्या रिब्स. रिब्स किती असतात? 25. 26. No, 24. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या रिब्स आहेत का? 24. येस, 12 रिब्स ऑन. येस येस 12 ribs one side and 12 ribs other side, येस and one that joined that one bone. येस. स्टर्नम, Floating rib. यस, स्टर्नम जॉइंट्स ऑल दी रिब्स. ये जो बीच वाला स्टर्नम होता है वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और सारे रिब्स का जो जॉइंट. एग्जैक्टली दक्ष, यू आर राइट. 25 बट रिब्स आर 24, 12 ऑन ईच साइड. एक साइड को 12 रिब हो गए, एक साइड को 12 रिब्स, 24. और बीच वाला अपना जो होता है वो होता है स्टर्नम. तो स्टर्नम जॉइंट्स ऑल द रिब्स. ओके, Yes. तो चेस्ट सेक्शन में टोटल कितने बोन हुए? चेस्ट सेक्शन में 25. 25. अभी वर्टेब्रा, कितने वर्टेब्रास होते हैं? 33 butterfly shaped vertebrae. Okay. जीवान को है 30. Yes. 33. 33. दिशा, आपको कितने वर्टेब्रा है? 33. ओके, किसी को आंसर चेंज करना है? No. No. वेरी गुड. सो फर्स्ट जो 26 वर्टेब्रा होते हैं, फर्स्ट 26 वर्टेब्रा, वो आते हैं. आई शो यू क्या होता है एग्जैक्टली. लिखेगी अभी. ट्वेंटी 24 जब हम स्केलेटन देखते हैं तो उसमें जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसमें 24 वर्टेब्रास आर visible. Okay, how many vertebrae are visible? 24. 24. बाकी के जो होते हैं वर्टेब्रास वो एक दूसरे में कंजेस्टेड होते हैं. क्या होते हैं? अटैच. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ वर्टेब्रास का. ये सर्वाइकल रीजन में होते हैं 7. Which is your cervical region? नेक वाला जो रीजन है that is cervical region. Everyone write it down. I won't tell you every time. Cervical region में 7 vertebrae होते हैं. Okay? Thoracic region में 12 vertebrae होते हैं. Thoracic means chest वाला region. Okay? Lumbar region. नेक वाले रीजन में हो गए आपके 7 वर्टिब्रास, चेस्ट वाले रीजन में हो गए आपके 12 वर्टिब्रास. उधर से आप थोड़ा नीचे गए कमर वाले सेक्शन में, लंबार रीजन में, उधर हो गए आपके 5 वर्टिब्रा. टोटल वर्टिब्रा कितने हुए दक्ष? टोटल वर्टिब्रा नहीं, मैंने अभी जितने बताए सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार तीनों मिलके कितने वर्टिब्रा हुआ? तीनों मिलके 7, 12, 5.
24. 24 वर्टेब्रा हो गए. उपवासाचं आणायचंय काही बरं. ओके. उपवासाचं अब काय क्या आणायचंय होता है, सायंकाळपर्यंत. लंबर रीजन से सांगतो नीचे नाही खाय नाही. जो 5 वर्टेब्रा होते हैं, वो 5 वर्टेब्रा एक ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम बैठते हैं, तो बैठने के लिए इजी पड़े इसीलिए 5 वर्टेब्रा एक के ऊपर एक ऐसे आपण लिव्ह स्पेस अरेंज वाल्याकडून करके बनवून ऐसे घेणार आहे एक ना सर. पूरा वर्टेब्रा बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सैक्रम. कितीच आहे का सोफा अंदाज? तो sacrum looks like a single vertebra, but it is the fusion of ओके 5 ओके किमती वाला. vertebras. Okay, understood? Yes. Sacrum is only one, looks like only one vertebra, but it is a fusion of 5 vertebrae. तो कितने हो गए? 24 plus 5, 29. Okay. अब नीचे वाला है आपका कॉकिक्स. कॉकिक्स इज द टेलबोन. जब हम पहले बंदर थे तो हमें थी टेल, तो वो टेल जो आती थी वो उस बोन से आती थी. ओके. कॉकिक्स से आती थी. कॉकिक्स इज नोन एज टेलबोन. व्हाट इज कॉकिक्स? Tailbone. टेलबोन. ओके. तो 29 plus 5, 24, 24 plus 5, 29. 29 वर्टेब्रा हो गए. आपके कितने वर्टेब्रा बचा अभी? 4 वर्टेब्रा, 4 वर्टेब्रास. तो कॉकिक्स इज द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टेब्रास. 4 वर्टेब्रा एक दूसरे को अटैच होते हैं और वो ऐसे टेलबोन बनाते. Everyone understood? Yes. Daksh, open your camera and tell me all the 33 vertebrae. Okay? Don't look into your notebook. Okay? 33. Cervical. Tailbone. नहीं, सीक्वेंस से बताओ. सर्वाइकल, थोरैसिक, Thoracic. Lumbar. And sitting. सैक्रल Sacrum and tail. एंड Tailbone. कॉकिक्स. सो सैक्रल में कितने बोन्स होते हैं Sacral में 5. और कॉकिक्स में कितने बोन होते हैं? 4. तो टोटल हो गए 33 वर्टेब्रास. ओके. Yes. नाउ यू विवन टेल मी द 33. cervical, thoracic, lumbar, sacrum, Sequence. Cervical. Look into your body, right? Cervical, thoracic. Thoracic is chest. Then lumbar. cervical, thoracic, lumbar, sacrum, and coccyx. How many bones are present in cervical region? How many vertebrae? 7, Thoracic region. 12, Lumbar region, Daksh. Lumbar 5. Lumbar region, Vivan. 5, Sacral. 5, Coccyx, Daksh. 4. Now Disha, tell me all the bones of vertebrae. cervical, thoracic, lumbar, coccyx, and sacrum. Sacral. Sacral पहले आता है फिर कॉकिक्स. टेल बाद में होती है ना. So that is coccyx. Okay. Then next is ये हो गए वर्टेब्रल कॉलम के. तो काउंट योर बोन्स. स्कल के हो गए 22. उसके बाद ईयर और हाइड बोन मिला के हो गए 7. दैट इज 29. थोरैसिक रीजन रिब्स हो गया 24. स्टर्नम हो गया 1. दैट इज 25. और वर्टेब्रल कॉलम के हो गए आपके
24 वर्टेब्रा, एक सैक्रम, एक कॉकिक्स। काउंट करो कितने हुए? 119. सैक्रम को आपने 5 कंसिडर किया क्या? Yes. Yes. वो फ्यूजन होता है तो हम बुक में उसे एक ही कंसिडर करते, तो सैक्रम एंड कॉकिक्स 1-1। $112. 112. इतने ज्यादा कैसे हो रहे? 29, राइट इट डाउन। 22 हो गए, पहले लिखे सबने 22। Yes. फेस के, फिर ईयर के 6, 28. 28, फिर हायर्ड बोन 1, कितने हुए? 29. 29, वेरी गुड। फिर अपना आ गया स्टर्नम, कितने हुए? 25. 30, 30। 30. फिर रिब्स हो गए 24, 54, 54. 54, वेरी गुड। फिर वर्टेब्रा हो गए आपके 7 वर्टेब्रा सर्वाइकल के, 64, यस। 61. और थोरेसिक के 12, Thoracic. 73, 73. ओके। और लंबार के 75. 75. लंबार के 5, हाँ ऐड करो उसमें। 75. 77. आई अंडरस्टूड 75, उसमें लंबार के 5 ऐड करो। $78. 84. 84. 75 में 5 ऐड किए 84 होते। नहीं, कॉकिक्स भी 80. ऐड किया। कॉकिक्स ऐड नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है, फिर 80. 80, ओके। Yes. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, एवरीवन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट इमेज, ओके। गूगल पे देखो इमेज है क्या अपने पास? दिख रही सबको? Yes. ऐसे ऐसे डिवीजन होता है। एक्सियल मतलब ऊपर वाला सेक्शन, उसमें होते हैं स्कल के 22, उसमें ईयर के 6, हायर्ड का 1, थोरेसिक के 25, वर्टेब्रा के 24, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। ये बहुत कंफ्यूजिंग इमेज है, जस्ट आई एम शोइंग यू कि आपको लिखना कैसे है। ऐसे डिवीजन करके लिखना है, ओके? Yes. यस। ये हो गया एक्सियल के। अपेंडेजेस के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके? दक्ष, विवान और दिशा, तीनों में से कोई भी मुझे फ्राइडे को मैसेज कर सकते हो ड्यूरिंग द स्केलेटन। विल लर्न एवरी बोन फ्रॉम द स्केलेटन, जिससे आपको बोन समझने में इजी जाएगा, ओके? Yes. ओके दक्ष? Yes.
दक्ष सेंड मी द फोटो ऑफ इंडेक्स. ओके, आपको जो बुक मिला है उसके इंडेक्स का फोटो सेंड करना. Yes. ओके. विवान, आप आपको जो मैं क्वेश्चंस दूंगी दक्ष के साथ, दिशा इज सीनियर देन यू, तो आप और दक्ष मिलके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो. पर्सनली रहेगा बिकॉज फॉर द एग्जाम्स आप दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हो, तो वो क्वेश्चंस आप दोनों डेली बेसिस पे सॉल्व करना. ओके. Yes. यस. Disha, revise everything, okay? Everything. You don't remember everything by your heart. So in next lecture, you are going to explain everyone, digestive system and each and every bone with their numbers, okay? So tell me everyone, open your camera. How's physics going? How's chemistry going? How's maths going? How's biology going? Biology is very easy. Maths also easy. All easy. All subjects are easy. Okay. For you, Daksh? Daksh? All subject are easy. Okay, do you want any corrections or any add-on in any subject, Disha? No. Vivan, Daksh, do you need anything add-ons or do you feel we should start something else in any subject? No. हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है, तो हमको कुछ करेक्शंस लगता ही नहीं है ना? No. Okay, let's meet on next weekend. Everyone remember मैंने जो जो बोला है. विवान, क्वेश्चन सॉल्व करना दक्ष के साथ. जो दक्ष भी सॉल्व करेगा आप भी सॉल्व करना. ओके, चलो बाय. हैव अ गुड डे. Bye.